हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और क्या पढ़ना है। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, दीज आर जस्ट रॉ डेटा। जब एक इन्वेस्टिगेटर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा को कलेक्ट करता है तो वो क्या है? वो एक रॉ डेटा है। Raw data are not capable of offering any meaningful conclusion. जो raw data है उससे हम कोई meaningful conclusion नहीं draw कर सकते हैं. This is just like a lump of clay without any specific shape or identity. Data are to be organized before these are presented for final observations or conclusions. Organization of the data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. An important method of organization of data is to distribute these into different classes on the basis of their characteristics. This process is called classification. This process is called classification of data. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मतलब क्या है कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम डिफरेंट क्लासेस पे डिवाइड कर लेंगे उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्कूल है, तो उस स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। तो गर्ल्स का एक सेक्शन बना देंगे, बॉयज़ का दूसरा सेक्शन बना देंगे। तो इसमें हम क्या किए हैं? इसमें हम अपने सारे आइटम्स को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं अलग अलग क्लास में। It involves conversion of raw data into statistical series in a manner such that some meaningful conclusions can be drawn out of them. The present chapter deals with classification of data, focusing on the conversion of raw data into various types of statistical series. चलिए देखते हैं what is classification. There are 200 families in your locality. अपने लोकेलिटी में 200 फैमिलीज़ हैं। यू हैव कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज ऑफ फैमिली एक्सेट्रा। अब हमने क्या किया है कि उनके इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन और साइज ऑफ फैमिली से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लिया है। बट दिस डेटा विल बी ऑफ लिटिल यूज़ unless you know how many families are educated and how many are uneducated. How many families earn an income exceeding 5,000 per month and how many earn 500 or less than per month. In other words, in order to make the raw data meaningful, they must be classified on the basis of the different characteristics such as educated families and uneducated families, rich families and poor families. तो क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा है उसको हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाई करें या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग क्लास में डालें। जैसे कि या तो पढ़ा लिखा फैमिली, या तो अनएजुकेटेड फैमिली, या तो रिच फैमिलीज़, या तो पुअर फैमिलीज़। उस हिसाब से अब सिर्फ डेटा है कि इसका इनकम इतना है, इसका एक्सपेंडिचर इतना है, किसी का एजुकेशन इतना है, तो उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा? कुछ भी तो नहीं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब अपने आइटम्स के स्टैटिस्टिकल सीरीज की आइटम्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड करना उन आइटम्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। Each such division of data is called class, and the process by which data is divided into different classes on the basis of their similarity or diversity is called classification. Thus, classification is the grouping of related facts into different classes. In the words of Connor, classification is the process of arranging things in groups or classes according to their resemblance, affinities, and gives expression to the unity of attributes that may exist among a diversity of individual. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का फीचर्स क्या है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। करेक्ट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का फीचर क्या है। डेटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन,
Persons may be classified as educated and uneducated. Data are grouped or classified on the basis of their class similarities. All similar units are put in one class and as the similarity changes, class also changes. देखते हैं दोनों का मतलब क्या है. Data are divided into different groups. जो अपना डेटा है उसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जैसे कि एजुकेशन के बेसिस पे एक इंसान एजुकेटेड हो सकता है तो दूसरा अनएजुकेटेड हो सकता है. डेटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास सिमिलैरिटीज. अब डेटा जो है उसको हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी क्लास सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग. सारे सिमिलर यूनिट्स को हम एक क्लास में डालेंगे और जैसे ही वो कॉमन चीज़ जो है उनके बीच वो चेंज होगा तो उनका क्लास भी हम चेंज कर देंगे. अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज अंडर. सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस. अब ऑब्वियस सा बात है ना, जब बहुत सारे डेटा को हम क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग क्लास में तो स्टडी करना सिंपल रहेगा और हमारा स्टडी ब्रीफ भी रहेगा. यूटिलिटी. Classification enhances utility of the data as it brings our similarity within the diverse set of the data. अब एक सेट में अलग अलग तरीके के लोग हैं तो हर अलग अलग तरीके के लोगों को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा. इसीलिए जब हम क्लासिफाई कर देंगे तो हम सारे कैरेक्टर्स को कवर कर पाएंगे एंड हमारा डेटा यूजफुल हो जाएगा, यूटिलिटी वैल्यू आ जाएगा. डिस्टिंक्टिवनेस. Classification renders obvious differences among the data more distinctly. हम अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से पढ़ पाएंगे. Comparability. It makes data comparable and estimative. इससे हमारे डेटा को कंपेयर करना ईजी होगा और एस्टिमेट्स निकालना भी ईजी होगा. Scientific arrangements. Classification facilitates arrangements of data in a scientific manner which increases their reliability. अब क्लासिफिकेशन की वजह से जो हमारा डेटा है वो काफ़ी साइंटिफिक मैनर में अरेंज हो गया है जिसकी वजह से हम डेटा पे ज़्यादा बेटर रिलाई कर सकते हैं. अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिवनेस. अब क्लासिफिकेशन की वजह से अपना डेटा और अट्रैक्टिव रहेगा और इफ़ेक्टिव भी रहेगा. तो अपने डेटा का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, यूटिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, कंपैरेटिबिलिटी, साइंटिफिक अरेंजमेंट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. अब देखते हैं एक अच्छे क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर्स क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन. कॉम्प्रिहेंसिवनेस. Classification of the raw data should be so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class. No item should be left out. अब अपने पास जो ग्रुप है, अपने जो पूरा डाटा है अपने पास, उसका हर आइटम किसी ना किसी ग्रुप या क्लास में जाना चाहिए, कोई भी आइटम नहीं छूटना चाहिए. Clarity. Classification of the raw data into classes should be absolutely clear and simple. अब जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी सिंपल और क्लियर होना चाहिए. होमोजेनिटी. ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर. अब एक ग्रुप में एक तरीके के लोग होने चाहिए, यानी कि एक ग्रुप में अलग अलग तरीके के लोग नहीं होने चाहिए. सिमिलर आइटम्स आर शुड बी पुट इन वन ग्रुप साइमल्टेनियसली. सूटेबिलिटी. द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्लासेस must suit the objective of inquiry. For example, in order to determine the income and expenditure of the students in a school, their classification on the basis of weight or marital status would make no sense. The data must be classified on the basis of different levels of income and expenditure. Stability. अब stability बहुत important है. A particular kind of investigation should be based on the same set of classification. This base should not change with each investigation. Elastic. Classification should be elastic. There should be scope for change in the classification matching with the change in the purpose or objective of a study. अब मान लो अपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, तो अगर स्टडी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया तो हमारे पास इतना प्रोविज़न रहना चाहिए कि हम अपने ग्रुप या क्लास को भी चेंज कर सकें, यानी कि अपने क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर पाएँ. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप में किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हम अपने डेटा को जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्लासिफाई कर सकते हैं,
क्वालिटेटिव में सिंपल और मैनिफोल्ड के बेसिस पे कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल से ही हमें समझ में आता है कि ये एरियाज़ के हिसाब से क्लासिफाइड डेटा होगा। तो देखते हैं, प्लेस है पंजाब हरियाणा यूपी, नंबर ऑफ फर्म्स 30 20 25। तो हम क्या किए, अपने फर्म्स को प्लेस के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिए। करेक्ट, पंजाब हरियाणा एंड यूपी। एंड इधर अपने वाई एक्सिस पे है 5 10 15 20 25 30 यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स, और एक्स एक्सिस पे है प्लेस पंजाब हरियाणा यूपी। तो इस बेसिस पे हम अपने फर्म्स को क्लासिफाई कर दिए। देखते हैं chronological classification. When data are classified on the basis of time, it is known as chronological classification. जब हम टाइम के हिसाब से अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे कहते हैं chronological classification. ठीक है, जैसे कि 2015 में सेल्स कितना हुआ, 80 लाख, 2016 में 90 लाख, 2017 में 95 लाख। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।